دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج میں سیرت سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے اگلے حصے عمر رسول کی ہتیا کے ارادے سے نکلا، اس کے بارے میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک بار دعا کی تھی کہ اے رب، خطاب کے بیٹے عمر کو یا ہشام کے بیٹے عمر کو ہدایت دے، اس کے دل میں اسلام کی محبت ڈال دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وچار تھا کہ اس طرح اسلام کو بڑی طاقت ملے گی۔ عمر کی اڑتی ہوئی جوانی تھی، وہ ارادے کے پکے اور حوصلے والے انسان تھے، بڑے طاقتور تھے، نہ کسی سے ڈرتے تھے نہ دبتے تھے۔ جس کام کو کرنے کا ارادہ کر لیتے تھے اسے کر کے ہی دم لیتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اسلام کی دشمنی میں بھی آگے تھے اور مسلمانوں کے لیے بڑے ہی پتھر دل اور بے رحم تھے۔ کوئی داسی اسلام قبول کر لیتی اور ان کے ساتھ لگ جاتی تو اسے بہت مارتے مارتے جب تک تھک نہ جاتے، ہاتھ نہ روکتے۔ جب تھک کر چور ہو جاتے تو کہتے، میں نے تو تھک کر چھوڑ دیا، ذرا دم لے لو، پھر تیری خبر لوں گا۔ ایک اور تو وہ اتنے زیادہ بے رحم اور ظالم تھے، لیکن ساتھ ہی وہ اپنے سینے میں درد مند دل بھی رکھتے تھے۔ وہ رشتہ داروں کے بڑے ہمدرد تھے، گھر والوں کے لیے سراپا رحم تھے۔ ان کو جب پتہ چلا کہ بہت سے مسلمان ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے ہیں تو ان کے دل کو بڑا دھکا لگا، اور جب یہ سنا کہ نجاشی نے مسلمانوں کو پناہ دے دی اور مکہ سے گئے ہوئے دونوں نمائندے ناکام لوٹ آئے تو وہ سر پیٹ کر رہ گئے، آنکھوں سے خون اتر آیا اور کن پٹی کی نسیں غصے سے پھول گئیں۔ محمد ہی وش کی گانٹھ ہے، اسی نے قریش میں پھوٹ ڈالی ہے، اسی نے خاندانوں میں آپس میں دوری پیدا کی ہے اور اسی نے اپنوں کو آپس میں ٹکرایا ہے۔ ہاں، تو اب میں اس کی گردن اڑا کر ہی دم لوں گا۔ وہ تلوار اٹھا کر گھر سے نکل پڑے کہ آج پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دیں گے اور آئے دن کی چنتا اور بے چینی سے سب مکت پائے جائیں گے۔ وہ تیزی سے آ رہے تھے کہ راستے میں بنی عدی کے ایک آدمی سے ملاقات ہو گئی۔ ان کا نام نعیم بن عبداللہ تھا۔ وہ پہلے ہی مسلمان ہو چکے تھے، پرنتو کسی کو پتہ نہ تھا۔ ظلم اور ستم کا خوفناک درشیہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، اس لیے کھل کر سامنے نہیں آئے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ عمر بہت جوش میں ہے، کمر سے تلوار بھی لٹک رہی ہے۔ پوچھا، خطاب کے بیٹے کدھر چل دیے؟ عمر نے کہا، اسی ادھرمی کے پاس جو دیوتاؤں کا نرادر کر رہا ہے، جو ساری ساماجک ویوستھا است ویست کر رہا ہے۔ نعیم نے کہا، نعیم عمر کا غصہ جانتے تھے، سوچا کہیں سچ مچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان خطرے میں نہ پڑ جائے، کسی طرح عمر کا رخ بدلا جائے۔ پرنتو ایک بات ان کے من میں آئی، بولے، عمر کس دھوکے میں ہو؟ کیا محمد کی ہتیا کے بعد عبد مناف تمہیں جیتا چھوڑ دے گا؟ اور پہلے ذرا اپنے گھر کی تو خبر لو۔ عمر نے کہا، کیا کہا؟ میرے گھر میں کون؟ نعیم نے کہا، تمہاری بہن اور بہنوئی مسلمان ہو گئے، محمد کا دین قبول کر لیا ہے، پہلے ان سے تو نپٹ لو۔ عمر ہکا بکا رہ گئے، جیسے تن بدن میں آگ لگ گئی ہو۔ بہن اور بہنوئی اسلام قبول کر چکے تھے، اسی کے لیے جینے مرنے کا فیصلہ کر چکے تھے، مگر عمر کو پتہ نہ تھا کیونکہ انہوں نے اب تک چھپایا تھا۔ عمر ترنت بہن کے اور لپٹے، ان کا سینہ سلگ رہا تھا اور غصے میں نسیں پھول آئی تھی۔ بہن کے گھر پہنچے تو بھیتر سے کسی کے کچھ پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ زور زور سے دروازہ پیٹنے لگے، گھر کے سب لوگ گھبرا گئے۔ انہوں نے پوچھا، کون؟ جواب میں آیا، میں عمر ہوں۔ عمر سننا تھا کہ لوگ چونک گئے، ڈر سے نڈھال ہو گئے اور ادھر ادھر چھپنے لگے۔
उमर की बहन का नाम फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा था और बहनोई का नाम सईद रजी अल्लाह तआला अन्हु था। ये दोनों खब्बाब रजी अल्लाह तआला अन्हु से कुरान पढ़ते थे। खब्बाब को खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस काम पर लगाया था। जो आयतें उतरती ये पढ़कर सुना दिया करते और वे दोनों याद कर लेते थे। उस समय खब्बाब रजी अल्लाह तआला अन्हु पूरा सूरह ताहा पढ़ा रहे थे। उमर की आवाज़ सुनते ही अंदर छिप गए। जिन पन्नों से वे पढ़ रहे थे फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने उन्हें भी छिपा दिया। सईद रजी अल्लाह तआला अन्हु हिम्मत करके आगे बढ़े और जाकर दरवाज़ा खोला। उमर एक भयंकर शेर की तरह अंदर आए और भयानक आंखों से चारों तरफ देखने लगे कि अभी जो आवाज़ कानों में पड़ी वो कहाँ से आई, लेकिन बहन और बहनोई के सिवा सामने कोई न था। कड़क कर पूछा, अभी पढ़ने की आवाज़ कहाँ से आ रही थी? ये वह कैसी आवाज़ थी और किसकी आवाज़ थी? भय से तो बुरा हाल था। सच सच बताने की हिम्मत ना हुई। झट बोले, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं। उमर फिर गरजे, छिपाओ नहीं, क्या समझते हो तुम्हारे इस्लाम से मैं बेखबर हूँ? ये कहकर वे बहनोई की ओर बढ़े, बुरी तरह उन्हें पीटने लगे। फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से यह देखा ना गया। बढ़कर शौहर को बचाने लगी तो उमर ने बहन को भी मारना शुरू कर दिया और इतना मारा कि सिर फट गया। आग को जितना ही पीटो उतना ही भड़कती है। उमर की मार से इस्लाम के प्रति आस्था और जोश की आग और भड़क उठी। फातिमा और उनके शौहर बुलंद आवाज़ में बोले, हाँ, हमने इस्लाम अपना लिया है, इस्लाम पर जीने और मरने का फैसला कर लिया है। अब दुनिया की कोई ताकत हमें इस्लाम से हटा नहीं सकती। हाँ, अब हम मुस्लिम हैं। इस्लाम की मिठास हमें मिल चुकी है, उसके लिए हम सब कुछ झेलने के लिए तैयार हैं। तुम्हारा जो जी चाहे कर लो। यह आवाज़ पक्के इरादे और दर्द में डूबी हुई आवाज़, दिल की गहराइयों से निकली हुई आवाज़ सीधी उमर के दिल से टकराई। उमर को इस आवाज़ ने हिला कर रख दिया। बेरहम हाथ चलते चलते रुक गए। बहन के सिर से खून के फव्वारे अब भी जारी थे। उमर का दिल यह दर्दनाक दृश्य देखकर पसीज गया। उसे अपने किए हुए पर शर्म भी महसूस हुई। अचानक नज़र उन पन्नों पर पड़ी जिन्हें खब्बाब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पढ़ा रहे थे। क्या यही तुम दोनों पढ़ रहे थे? उमर ने कहा, ज़रा देना, मैं भी देखूं। उमर की आवाज़ में अब बड़ी नरमी आ चुकी थी। बहन ने कहा, मुझे डर है कि अगर ये तुम्हारे हाथ लग गए तो फिर वापस नहीं मिलेंगे। उमर ने यकीन दिलाया, कसम खाकर कहा कि मैं वापस ज़रूर दूंगा। फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने ये पन्ने उमर को दिए। बहन के मन में यह तमन्ना उभर रही थी कि काश इस्लाम की दौलत उमर को भी मिल जाए। उमर ने पन्ने हाथ में लिए और गौर से पढ़ने लगे। पढ़ते ही अधर्मियों के बुरे अंजाम से दिल कांप उठा। दिल की दुनिया बदल गई और वे पुकार उठे, कितने अच्छे और पवित्र बोल हैं ये। खब्बाब निकट ही छुपे हुए सारा माजरा देख रहे थे। अब वे सामने आए और बड़ी खुशी से और इत्मीनान के साथ बोले, उमर, अल्लाह के रसूल ने दुआ की थी कि ऐ रब, हिशाम के बेटे अबुल हकम या खत्ताब के बेटे उमर को से इस्लाम की मदद कर। उमर ने कहा, खुदा की कसम, अल्लाह ने तुम्हारे हक में यह दुआ सुन ली है। उमर, अब रब से जुड़ जाओ और अब उसके दर को न छोड़ो। उमर ने कहा, अच्छा खब्बाब, बताओ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ हैं? मैं जाता हूँ। मैंने भी अब मुसलमान होने का फ़ैसला कर लिया है। मुझे रोशनी मिल गई है, सत्य मुझ पर प्रकट हो गया है। वास्तव में अब तक मैं बड़ी भूल में था। अब मुझे पूरा यकीन हो गया कि मुहम्मद वास्तव में नबी है। वे जो वाणी पेश कर रहे हैं वो सचमुच ईश्वर की वाणी है। उमर के मुख से यह बात सुनकर खब्बाब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दिल खुशी से खिल उठा और फ़ौरन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पता बता दिया कि आप सफ़ा पहाड़ी के निकट अरकम के घर में हैं। फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की ज़िंदगी का यह कितना आनंदमय क्षण था और सईद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खुशी का भी कोई ठिकाना ना था। फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का भाई और सईद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का प्रिय
नातेदार इस्लाम की गोद में था। उमर आए और मुशरिक थे, उमर आए तो मुशरिक थे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लहू के प्यासे थे और जा रहे थे केवल रब के बंदे बनकर और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जान निछावर करने वाले बनकर। उमर दौड़े जा रहे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना रहनुमा बना लें और खुद को आपके हवाले कर लें। उमर अरकम के घर पहुंचे तो दरवाज़ा बंद था। उन्होंने कुंडी खटखटाई, अंदर से बिलाल रज़ी अल्लाह तआला की आवाज़ आई। कौन? जवाब मिला, खत्ताब का बेटा। उस समय अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कुछ साथियों के साथ थे। हमजा, अबू बकर, बिलाल और अली, अल्लाह इन सब से खुश हो, सभी मौजूद थे। बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, अल्लाह के रसूल, दरवाजे पर खत्ताब का बेटा उमर है। दरवाज़ा अगर खोल दिया तो डर है कहीं वो परेशान न करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आने दो, अगर नीयत ठीक है तो क्या कहना। हमजा रज़ी अल्लाह तआला ने कहा, और अगर बुरी हुई तो उसको मारना मेरे बाएं हाथ का खेल है। बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दरवाज़ा खोलने के लिए गए। हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी साथ हो लिए कि उमर ने अगर हमला किया तो बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मदद कर सकेंगे। दरवाज़ा खोलते ही उमर अंदर आए। हमजा और बिलाल रज़ी अल्लाह तआला झपटे और उन्हें बाहों में जकड़ लिया। उमर पर नज़र पड़ी तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह दुआ की, ऐ रब, उमर के दिल में जो खोट हो दूर कर दे, इसके सीने में ईमान की जोत जला दे। हमजा, उमर का हाथ छोड़ दो, बिलाल तुम भी छोड़ दो। हमजा और बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अलग हो गए। उमर आगे बढ़े और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खड़े हो गए। आपने उनसे कहा, उमर, क्या जब तक कोई दर्दनाक अजाब ना आ ले अपना रवैया नहीं बदलोगी? कहो, क्या सोच रहे हो? उमर ने विनम्रता पूर्वक जवाब दिया, ईमान कबूल करने आया हूँ। अब मैं मुसलमान हूँ, आपका सेवक हूँ, खुदा का बंदा हूँ, सत्य का बोलबाला हो, यही अपनी ख्वाहिश है। सदकल्लाहुल अज़ीम। इंशाअल्लाह ताला अगला हिस्सा जो बाकी है आपकी खिदमत में कल पेश किए जाए। खुदा हाफिज़।